Good morning, class 10th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to continue with the chapter that we have already started, that is the first chapter of your economics, which is development. In our last few classes regarding this chapter, we have already studied that what do we mean by the development, then how it is different from that of the development. Then after that, we have studied that how this development, the goals or the aspirations, the developmental aspirations or the goals can be different for the people coming from different walk of life. For that, we have taken up the example of the laborer, the landless laborer, and the girl from the interior village. Then after that, we have seen that apart from the income, there can be several other goals when it concerns with the development. Like for example, we have taken up the example of the laborer who was working in a small unit, for whom the income was not that much important, rather the you can say the surrounding atmosphere of the place where he was working was much more important to him. Then after that, we have seen that what do we mean by the national development and how can this development be measured. And for the measurement of the development, we have taken up various parameters, that is the average income. Then after that, we have taken up the per capita income, then infant mortality rate, literacy rate, net attendance ratio. All these things we have already studied in our last classes. In today's class, we're going to start up with the new heading, that is public facilities. Public facilities, if you go for dictionary meaning of this particular word, it is made up of two words, that is public and one is facilities. Public means the citizen, the common people. Facilities means the यू कैन से जो हमारी जो पब्लिक को सेवाएं दी जाती हैं, असिस्टेंस बीइंग गिवन टू द पब्लिक इज़ द पब्लिक फैसिलिटी. अब देखो, हमने जब पिछले बार जब बात किया था कंसर्निंग हरियाणा एंड केरला, in Haryana we were seeing that per capita income was more than that of the Kerala, which was 162,034 rupee for the person in Haryana, which was the per capita income of Haryana, and for Kerala it was 155,516 was the per capita income of the Kerala. So we can see that there was a difference between Haryana and Kerala regarding the per capita income. But if you talk about the facilities being provided in Kerala to the public is much more better than that of the Haryana, the people of Haryana. इन केरला भी कम अक्रॉस कि वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है हरियाणा के कंपैरिजन में. देन वहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशियो भी हरियाणा के कंपैरिजन में ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं. इट मीन्स दैट द फैसिलिटीज़ जो हमको पब्लिक को प्रोवाइड हो रही हैं वो केरला में बेटर है कंपेयर टू द पीपल विच द फैसिलिटीज़ बीइंग गिवन इन हरियाणा. देखो, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं ना, ये हम एक जनरल इंसान अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भलाई कर सकता है अगर वो कोई भी फैसिलिटी अपने लिए बनाता है, क्रिएट करता है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो किसी लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर अगर आप इंडिविजुअली हर एक घर अपने यहाँ एक गार्ड रखेगा तो इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर. बट अगर वहीं पर द होल लोकेलिटी कम टुगेदर और वो अपना एक गार्ड रखती है, मान लो कि उस लोकेलिटी के 3 एंट्रेंसेस हैं और वो हर एंट्रेंस पे 3 गार्ड्स रख दिए, तो यहाँ पे कंबाइंड होने पे क्या हुआ कि पर पर्सन आपका जो कॉस्ट था उस गार्ड का वो कम हुआ और सिक्योरिटी सबको मिल गई. सी, दिस इज़ द ओनली केस विद द फैसिलिटीज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द पब्लिक. देखो, पब्लिक को कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हम अपने लिए क्रिएट नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जांपल, बिग यूनिवर्सिटीज़. आप जब स्कूल पास करोगे तो यू विल एस्पायर टू गो टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी. देखो, अगर आप अकेले सिर्फ अगर कॉलेज जाना चाहो, एक स्टूडेंट कॉलेज जाना चाहेगा तो उसके लिए तो उसके पेरेंट्स बहुत बड़ा कॉलेज नहीं बनवा सकते ना. लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज जाना चाहेंगे तो कोई एक ऐसा आप कह सकते हैं एक कलेक्टिव
अफेयर भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स एक साथ आ जाएं और कहें कि ओके वी विल गोइंग टू फॉर्म अ यूनिवर्सिटी फॉर आवर चिल्ड्रन। तो हमारे यहाँ ये जो कलेक्टिव काम करने के लिए जो पर्सन है आगे आता है वो है गवर्नमेंट। तो ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं ये हमको कौन प्रोवाइड कराता है? इट इज़ दी गवर्नमेंट विच प्रोवाइड्स दी पब्लिक फैसिलिटी टू द पीपल। अब देखो ये हरियाणा में ये जो आपकी लिटरेसी रेट है, आपका जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है या नेट अटेंडेंस रेशियो है, ये हरियाणा से केरला का जो बेटर है, हरियाणा में उतना बेटर नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने पैसे वाले हो, आप अपने लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं खरीद सकते। और अगर आपको पब्लिक फैसिलिटी दी जाए अच्छी, तो इवन दो आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो कम होगा, बट आप और सारे वॉक ऑफ लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ोगे। तो इसलिए ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। देन आपको एक नया टर्म अपने बुक में मिलेगा, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और दी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखो ये क्या है, ये भी एक तरह का इट इज़ अ पैरामीटर टू मेजर दी डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इन एन इकोनॉमी। अब देखो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है ये आपकी बताती है कि एक इंसान कितना इकोनॉमिकली डेवलप हुआ और उसका डेवलपमेंट ऑन होल बताती है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है ये कैलकुलेट करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ये सिर्फ आपकी एक चीज़ को सिर्फ एक ही चीज़ यानी कि आपकी इनकम को ही हाईलाइट नहीं करता है, रादर इसके अंदर आप ये टेबल देख सकते हो विच इज़ 1.6, जिसमें आपकी अलग अलग ब्लॉक्स दिए हैं फॉर द डिफरेंट कंट्रीज़, जिसमें श्रीलंका ग्रॉस इनकम इज़ 10,789, then life expectancy at birth is 75, then mean year of schooling of people aged 25 and above is 10.9, then HDI rank in the world is 73। देखो HDI रैंक इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक। अब देखो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है ना, ये तीनों चीज़ों को मिला करके कुछ एक फॉर्मूला अप्लाई करके ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाला जाता है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है अलग अलग कंट्री को प्रोवाइड किया जाता है उनके यहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, ये सारी चीज़ों को काउंट करके उसमें हर कंट्री को एक पर्टिकुलर रैंक प्रोवाइड करी जाती है, जिससे पता चलता है कि वो कंट्री कितना ज़्यादा अपने यहाँ इकोनॉमिकली एज वेल एज और भी सारे वॉक ऑफ लाइफ में बेटर वर्किंग कर रहा है। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। After that comes a new topic, that is sustainability of the development. Sustainability of the development. What does this particular word means? Sustainability. Sustainability simply means कि जो डेवलपमेंट है उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाना। जो सस्टेनेबिलिटी है उसको रिस्टोर, जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं हो कि हमने आज डेवलपमेंट किया और फिर हमने साल भर के बाद हमारा डेवलपमेंट ख़त्म हो गया। वी आर नॉट वर्किंग ओवर इट, बट हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब काफ़ी दिन तक चलना चाहिए। अब अच्छा, ये जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल कब होगा? जब हम अपने रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। मान लो आपके पास 10 रुपीज़ है और आपको पूरा स्ट्रेच ऑफ द मंथ 30 रुपीज़, आप मान लो कि आपके पास 30 रुपीज़ है और आपने पूरा एक महीना उसको स्पेंड करना है और आपको वो आपकी एक महीने की पॉकेट मनी है। सो आइडियली तो यही है ना कि अगर आपको फर्स्ट डे से लेके 30th डे तक आपके पास पैसा जो है वो मेंटेन रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 1 रुपी पर डे आप स्पेंड करो। इट इज़ अ फीजिबल थिंग। तो इससे क्या होगा? आपको मंथ एंड तक आपके पास पैसा बचेगा। बट अगर यही चीज़ आप ऐसा कर लो कि फर्स्ट डे
आप फर्स्ट जो डे होगा दैट इज़ दी फर्स्ट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आपने सारा 30 रुपीज़ स्पेंड कर दिया. सो यू विल बी लेफ्ट विद नो मनी फॉर द कमिंग डेज ऑफ द मंथ. यानी कि आपने सारा का सारा रिसोर्सेज एक ही दिन इस्तेमाल कर लिया. इसी तरह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट में भी अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और सारा का सारा रिसोर्सेज हम एक टाइम पर ही इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जा कर के रुक जाएगा, स्टैगनेंट हो जाएगा. तो इस स्टैगनेंट पोजीशन को ना आने पाए हमारी इकोनॉमी में, हम किस तरह का डेवलपमेंट इस्तेमाल अडॉप्ट करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अच्छा, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये बहुत सारे रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है. टू दिस विल कम अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास. अप टिल देन टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ. हैव अ ग्रेट डे अहेड.